and welcome back to Ali's Tarot Cafe. I just got my second vaccination shot, and please excuse me if I'm not in the best or full of my energy, but let's get down to business and quickly take out the cards for each zodiac sign for the upcoming week. Alright, so we're going to start with Aries. Alright. Okay, Aries, so the first card you have got for this week is called the Inner Voice. That means this week you have to really listen to your intuition और आपकी अंदर की आवाज़ आपको चीज़ों के लिए क्या करने को बोल रही है. Which path is it asking you to take? Because if you do so, if you listen to your inner voice, then the dolphins are going to get you a lot of peace. The moon is going to get you a lot of peace. The water is there, and there's a diamond in the head. मतलब peace, tranquility and prosperity मिलेगी. So make sure that you listen to your inner voice this week. Also, the second card that has come for you, Aries, is the Patience card. इसमें there is a pregnant figure. There's a lady who's sitting and she's looking very calm and happy, and she's not worried that things are taking time. So Aries, don't be worried कि कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा time ले रही हैं as opposed to being very fast. It's just that this is the time for you to just wait and watch. The things that you're looking out for, they will happen. It will just take some time. So have some patience, Aries. Also, for the couples who are trying for a child, this is a lucky time, and there is a possibility, a very high possibility that you will be blessed with a baby this coming weeks. All right, and or you will have a good news of expecting a baby. The third card you've got, Aries, this week is again turning in. So basically you have to ignore all the negativity. यहाँ पर इस card में there are figures of people shouting and screaming, and and this figure is very peacefully sitting in on a pool of water. So you have to ignore all the negativity and criticism coming your way, and you have to just tune into what you feel are your priorities और आपको क्या चीज़ में खुशी मिलती है, and that will bring you a lot of satisfaction. So all right, Aries, next I'm going to take out the cards for is Taurus. So let's see कि Taurus के लिए इस week क्या tarot guidance है. All right, give me a second. All right, Taurus. Okay, Taurus. So the first card that has come for you is playfulness. मतलब आजकल whenever you're trying to be playful about something, you're expecting some good news या कोई चीज़ completion पे होने वाली है, तो वहाँ पर कोई चीज़ अड़चन आके या कोई obstruction आके आपकी वो खुशी को ले लेती है. जस्ट व्हेन थिंग्स आर अबाउट टू मटीरियलाइज ना कुछ हो जाता है, एंड वो थिंग आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाती. बट टू रिमेंबर टॉरस, ये सब फेजेस होते हैं लाइफ में, एंड दे विल गो अवे. सो डोंट गेट टू स्ट्रेस्ड अबाउट इट. ऑल्सो सेकेंड कार्ड यू गॉट इज द कॉम्प्रोमाइज कार्ड. मतलब आपने अभी कुछ सिचुएशंस को लेके एक कॉम्प्रोमाइज कर रखा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी और रिसोर्सेज या टाइम या सपोर्ट. बट द कार्ड इज सेइंग दैट टॉरस, नाउ द टाइम हैज़ कम कि आप वो कॉम्प्रोमाइज मत करें, और आपको जो चाहिए, व्हाट यू ट्रूली वांट, यू हैव टू गो आफ्टर दैट. अदरवाइज यू विल फील वेरी डिससैटिस्फाइड एंड नॉट हैप्पी. ऑल राइट. एंड थर्ड आपका जो कार्ड आया इस वीक के लिए टॉरस, वो आया है साइलेंस कार्ड. मतलब जनरली पीसफुल रहेगा. इट विल बी, यू विल हैव ट्रैंक्विलिटी दिस वीक. ऐसे कोई मेजर बुरी खबर या डिस्टर्बिंग कोई इवेंट्स नहीं होंगे. यू विल बी एट पीस विद योर सेल्फ. यू विल एंजॉय योर सेल्फ. मे बी यू विल do some activities that bring you joy and peace. So overall a good week. Just make sure that you don't compromise, and also don't get too worried about some things not happening the way that you wanted. It will pass. All right, next I'm going to take out the cards for Gemini and see कि next week के लिए Gemini के लिए क्या tarot guidance है. Okay. Okay, Gemini. So the first card you have got is suppression card. मतलब these days आपको बहुत ही suppressed feeling हो रही है, जैसे जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे burdens हैं, बहुत सारी responsibilities हैं. And if you see this figure, इसके पूरे ropes बंधी हुई हैं, and there's a big stone or slab that's on his head, on this figure's head. मतलब कि अभी कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स है कुछ चीज़ों को लेके, बहुत सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस है, एंड आप खुल के वो डिसीजंस नहीं कर पा रहे हो. यू नॉट एबल टू प्रोसीड फर्दर बिकॉज बहुत सारी रोप्स आपको बांधे रखे हैं. बट रिमेंबर, इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज एंड इट विल वर्क आउट. ठीक है, तो डोंट गेट टू वरीड अबाउट इट बिकॉज यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एडवेंचर कार्ड कमिंग दिस वीक. मतलब कि गेट रेडी फॉर सम एडवेंचर, सम न्यू वेंचर. कुछ तो इंसिडेंट होने वाला है which will bring you, take you in a different direction, but you have to keep an open mind for it. तो एक चाइल्ड की तरह
आपको बिना किसी इनहिबिशन के, बिना किसी फियर के, एंड वो एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म रख के उस एडवेंचर की तरफ जाना है, बिकॉज देयर इज अ रेनबो ऑफ हैप्पीनेस वेटिंग फॉर यू। ऑलराइट जेमिनी। और थर्ड जो आपका आया है हार्मनी का आया है। तो अगर आपको कुछ अभी सप्रेस्ड फीलिंग हो रहा है काफ़ी वीक से, या डिप्रेशन टाइप फीलिंग्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ ऑल दैट बर्डन एंड ऑल, डोंट वरी, दिस कमिंग वीक यू गोइंग टू हैव हार्मनी एंड पीस। ये जो डॉल्फिन्स हैं ये हार्ट से लेके हेड तक आपको पीस पहुंचा रही है, और ये ब्लू कार्ड है, मतलब ओवरऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ मेडिटेटिव एक्टिविटीज़ करें, या कुछ अपने आप को जो आपको सुकून देती है, पीस देती है, वो एक्टिविटीज़ करें, तो आपका वीक बहुत ही अच्छा और पीसफुल होने वाला है। ऑलराइट जेमिनी, नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट द कार्ड्स फॉर कैंसर एंड सी कि कैंसर फ्रेंड्स के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक। ऑलराइट, give me a minute, let me give them a good shuffle. ओके कैंसर, काफी ही एक्साइटिंग वीक है आपके लिए। सो द फर्स्ट कार्ड यू गॉट इज द रिबेल कार्ड। सो कैंसर, दिस इज यू, रिबेल इन अ वेरी पॉजिटिव वे, मतलब जो भी आपको होल्ड बैक कर रही थी चीजें या लोग, now is the time for you to break free because you have the knowledge, you have the will power, और जो भी ropes और chains थी वो आप सब तोड़ रहे हो, और आपके पास phoenix bird के wings हैं, मतलब you're going to rise above all your problems, and आप बोलोगे कि यार मुझे यही करना है, मुझे यही डायरेक्शन में जाना है, और वो अच्छी डायरेक्शन है आपके लिए। तो रिबेल आप होंगे, बट इन अ गुड वे फॉर यू। तो आपकी जो पुरानी ऑब्स्ट्रक्शंस थी, जो बंदिशें थी, एवरीथिंग यू गोइंग टू लेट गो एंड यू गोइंग टू बी रीबॉर्न एज अ रिबेल इन अ गुड वे। ठीक है। ऑल्सो सेकेंड कार्ड जो आपका आया है कैंसर, वो आया है पॉसिबिलिटीज कार्ड, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट अबाउट देम एंड ग्रैब देम। जैसे कि एक ईगल अपने प्रे को ग्रैब करती है, वैसे आपको पॉसिबिलिटीज के लिए अपने आईज और अपने ईयर्स खुले रखने हैं, और वो पॉसिबिलिटीज को लेना है, सो दैट यू डोंट लूज आउट ऑन देम। और थर्ड आपको जो कार्ड आया है वो है पॉसिबिलिटीज कार्ड, सॉरी थंडरबोल्ट कार्ड। इसका मतलब कि यू आर गोइंग टू बर्स्ट आउट, एक बहुत ही एक इवेंट होने वाला है इस वीक, जिसकी वजह से आप बिल्कुल बर्स्ट आउट करोगे थंडरबोल्ट को की तरह, सॉरी, और आप सारी नेगेटिविटी को अपने आसपास से निकाल दोगे। जो भी यहाँ पर नेगेटिव पीपल गिर रहे हैं नीचे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ गिर रहे हैं, मतलब जो नेगेटिविटी आप उनको छोड़ दोगे कि मेरे से दूर हटो, आई डोंट वांट नेगेटिविटी अराउंड मी, आई वांट टू जस्ट गो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन इन माय लाइफ एंड आई डोंट वांट एनी क्रिटिसिज्म या कुछ भी नेगेटिव मेरे को नहीं चाहिए। ऑल्सो यू हैव टू जस्ट टेक केयर कैंसर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज इसमें चक्रास आए हैं इस कार्ड में, मतलब आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है इस हफ्ते। मेक श्योर यू गेट योर प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज एंड वर्क लाइफ बैलेंस, ताकि आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट कैंसर, now I'm actually going to take out the cards for Leo for this week and see कि हमारे Leo friends के लिए क्या guidance है इस week from the tarot Zen cards. Give me a second, I'm going to give them a good shuffle. Okay Leo, so first card that has come for you is the Source card, मतलब you are very confused about certain things in your life right now and you don't know कि इस डायरेक्शन में जाऊँ कि इस डायरेक्शन में जाऊँ, ये डिसीजन लूँ कि ये डिसीजन लूँ। सो डोंट वरी, येस यू हैव टू थिंक इट आउट, नो डाउट कि आपको पूरी कैलकुलेशंस करनी है, पूरा सोचना है क्या है प्रोज क्या है कॉन्स, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर दैट डोंट ओवर थिंक थिंग्स और डोंट बी इनडिसाइसिव। कहीं डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, सो मेक श्योर दैट यू टेक दैट डिसीजन एंड डोंट गेट स्टैग्नेंट एंड डोंट गेट ओवर कन्फ्यूज्ड। ओके, द सेकेंड थिंग दैट यू गॉट इज द ब्रेक थ्रू कार्ड, मतलब एक मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है फॉर यू दिस वीक। इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी अ प्रमोशन, इट कुड बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू वेंचर, बिकॉज इट्स गोइंग टू शैटर द लाइफ अराउंड यू, बिकॉज यहाँ पर पूरा ग्लास शैटर हो रहा है, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव ब्रेक थ्रू इवेंट आने वाला। कुछ चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे वो उस चीज़ में ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, वो ब्रेक थ्रू आपके लिए आने वाला है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट and make sure that you don't overthink things and you make that decision when that breakthrough comes. And देखो थर्ड कार्ड आपके लिए आया है अंडरस्टैंडिंग कार्ड। सो टैरो इज कंप्लीटली टेलिंग यू कि इस बर्ड की तरह डोंट स्टे इन द केज, take that calculated risk and fly away, because if you don't do that you will be left out. All your other colleagues and friends and जो भी आपका circle है, they are flying out in the free sky, but आप overthink करके over calculate करके केज में मत रह जाना। All right Leo, so you have a great exciting week ahead Leo, so get ready for that. And okay Virgo, so I'm gonna take out the cards for you for coming week. Okay, so Virgo, you feel some this week थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा आने वाले हैं and that are going to make you tired. तो वो बर्डन या तो फैमिली साइड पे या
क्या कहते हैं, वर्क साइड पे, पर्सनल साइड पे कुछ तो आपके ऊपर बहुत बर्डन्स हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ ज़्यादा काम आने वाला है. सो थोड़ा सा टेक इट ईजी, बिकॉज आप सबको हाँ तो नहीं बोल पाएंगे. सो दिस वीक जस्ट मेक अ चॉइस कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना काम ले सकते हो, एंड लर्न टू से नो वेर एवर इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी. ठीक है, अदरवाइज यू विल फॉल सिक एंड गेट टायर्ड. ओके, और कुछ इस वीक छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बिटर एक्सपीरियंसेस, जो आपको लगे कि अरे यार ये मेरे साथ क्या हो गया. बट रिमेंबर, इस कार्ड का मतलब है कि वो जो एक्सपीरियंस होगा, छोटा मोटा, नथिंग मेजर बट होगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू लर्न फ्रॉम इट एंड गो हेड एंड आपकी लाइफ स्किल्स गेन करने के लिए. ऑलराइट, थर्ड आपका कार्ड आया है इस वीक है रिसेप्टिविटी. सो वर्गो, दिस वीक यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली ओपन, okay, and receptive of all the energy the universe has to give you. तो ये जो naked figure है और lotus है, मतलब this week you're going to be open to, you have to be open to new ideas, to upskilling yourself, to new ventures, and if you do so, तो you will have very peaceful week and you'll also have some money coming your way. So make sure कि आप अपनी inhibitions को छोड़ के be receptive to people's thought, people's feedback, new skills you can gain, and so that you can have a great productive week ahead, Virgo. All right. Now I'm going to take out the cards for Libra friends and see कि उनके लिए tarot guidance क्या है इस week के लिए Libra. Let me give it a good shuffle, Libra. All right, Libra. So the first card that has come for you is rebirth card. मतलब this week you're actually going to take a conscious call कि मैं अपने ये जो मेरे पुराने पैटर्न्स है जो मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, या ये जो पुरानी सिचुएशंस हैं या लोग हैं या मेरी खुद की जो हैबिट्स हैं, मैं उनको छोड़ के एक रीबर्थ लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ इन अ पॉजिटिव वे, इन अ गुड वे फॉर योर सेल्फ. ऑल्सो लेटिंग गो कार्ड आया, मतलब यू आर गोइंग टू लेट गो ऑफ सर्टेन जो भी आपके फोबियाज हैं या प्रेजुडिस है कि मुझे ये डायरेक्शन में नहीं करना, उस डायरेक्शन में नहीं करना, वो कुछ जो आपकी मेंटल ऑब्स्टिकल्स है, यू विल लेट गो ऑफ देम दिस वीक इन अ पॉजिटिव वे एंड यू विल से कि आई एम नाउ रेडी टू embrace new habits, new adventures and new way of doing things. Okay, and third आपका कार्ड आया लिब्रा abundance कार्ड, मतलब मटीरियल वाइज, मटीरियलिटी वाइज आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कोई कमी नहीं होगी इस वीक. यू हैव द बैलेंस ऑफ थिंग्स, यू हैव विजडम, यू हैव मनी, यू हैव सन मून, थिंग्स विल बी इन अबंडेंस. अबंडेंस कार्ड मतलब आपको सब चीज़ें ठीक से मिल जाएंगी, ऐसे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मटीरियलिटी वाइज. ऑल राइट लिब्रा, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू लेट गो ऑफ जो चीज़ें आपको होल्ड बैक या नॉन प्रोडक्टिव होने से रोक रही है, उनको छोड़ दीजिए ताकि आप रीबॉर्न हो पाए इस वीक लिब्रा. All right, so now I'm going to take out the cards for my Scorpio friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance आया है. Okay, Scorpio, so you've got a very beautiful card this week called the Miracle card. इसे courage card कहते हैं. मतलब Scorpio friends, keep courage this week. Something miraculous is going to happen. कुछ चीज़ जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, ये तो इन अ गुड वे, ओके, ये चीज़ तो मुझे मिलेगी ही नहीं. यू विल बी सरप्राइज कि इस वीक वो मिरेकल होगा. जैसे रॉक में एक फ्लावर ब्लॉसम कर रहा है विदाउट एनी सॉइल और वाटर और इवन सनलाइट, सेम वे समथिंग विच यू ऑलवेज फेल्ट कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है, वो इस हफ्ते होने वाली. ऑल राइट, सो बी ऑन द लुक आउट फॉर दैट. ऑल राइट स्कॉर्पियो, द सेकेंड थिंग इज मोमेंट टू मोमेंट कार्ड. मतलब दिस वीक फ्रॉम वन स्मॉल क्या कहते हैं, आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप जंप करोगे, विल बी हैप्पी. छोटे छोटे ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे जो आपको हैप्पीनेस देंगे क्योंकि ये रेनबो है आसपास, और आप एक इवेंट से दूसरे इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे या एक खुशी से छोटी खुशी या छोटे छोटे चेंजेस लाओगे अपनी लाइफ में, और वो रॉक्स पे आप जंप कर रहे हो और खुश हो रहे हो और मोमेंट में जी रहे हो आप. ठीक है, यू आर नॉट क्लिंगिंग ऑन टू एनी पास्ट इवेंट्स, तो आपको उसमें खुशी मिलेगी. ऑल राइट स्कॉर्पियो, एंड द थर्ड कार्ड यू गॉट फॉर यू इज द फूल कार्ड. मतलब कि कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस वीक एंड यू हैव टू ग्रैब इट, इवन में इसमें थोड़ा रिस्क हो, इवन इफ कि आपके आसपास की सारी दुनिया बोले कि आप फूल हो, ये क्यों कर रहे हो, ये रिस्क क्यों ले रहे हो, ये अनवेंचर टेरिटरी है, इसमें क्यों जा रहे हो, बट मेक श्योर दैट यू टेक इट अप बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू. ऑलराइट स्कॉर्पियो, नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट द कार्ड्स फॉर माई सैजिटेरियस फ्रेंड्स एंड सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या टैरो गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक. ओके, लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गोइंग टू गिव इट अ गुड शफल. ऑल राइट साजी, सो एक तो आपका स्ट्रेस कार्ड आया है इस वीक.
मतलब कुछ तो लोग हैं जो आपका बबल बर्स्ट करने में लगे हुए हैं, जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। आप बहुत कुछ मल्टीटास्क कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो टू कीप इट टुगेदर, बट सम पीपल आर जस्ट नॉट लेटिंग गो एंड दे आर गिविंग यू दैट स्ट्रेस। कुछ कुछ छोटे छोटे धोखे देना, छोटा छोटा कुछ आपके काम को बिगाड़ना, उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है। ओके, डोंट वरी सैजिटेरियस, ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं एंड यू हैव टू जस्ट लर्न टू डील विद देम एंड गेट ऑन विद इट। ओके, सो डोंट गेट टू मच वर्कड अप ओवर इट। क्योंकि आपका एक और कार्ड आया पास्ट लाइफ, तो मतलब कुछ तो बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी लोग आपको काफ़ी तंग कर रहे हैं एंड दे गिविंग यू अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। सो जस्ट मेक श्योर कि ये एक फेज है, जस्ट गेट आउट ऑफ इट, गेट ओवर इट, और ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो। ऐसे नेगेटिव इवेंट्स के बाद पॉजिटिव इवेंट्स भी होते हैं एंड यू जस्ट हैव टू पिक योर सर्कल एंड इग्नोर सच पीपल हु ब्रिंग यू सो मच स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और थर्ड आपका कार्ड आया है ये पार्टिसिपेशन कार्ड, मतलब कि आप बहुत सारे चीज़ों में खर्चा करेंगे, अपनी एनर्जी और टाइम और रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। You will feel creatively charged and involved in things and participative, but at the same time just be careful। ये कार्ड कह रहा है कि उतना खर्चा ना अपना थोड़ा ध्यान से करना, whether it's money wise और energy और resources wise, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि you will run out of money, कि आपने ज़्यादा खर्चा जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कर लिया, या आपने आपको ज़्यादा एनर्जी स्पेंड कर ली और आप थक गए या बीमार हो गए उस इवेंट के बाद। सो थोड़ा ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय। हाय माय कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली सी कि नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए क्या टैरो गाइडेंस आया है। All right, so Capricorn, the first thing that's come for you is confusion. So you are confused regarding certain things. You're not able to make a decision. यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये decision लूँ वो decision लूँ। See, make whatever decision you need to make, yes, सारे pros and cons सोच के लो, but don't overthink things। ठीक है, ज़्यादा भी overthink मत करो कि आप 2 steps back चले जाओ and you're not able to make a decision। Just get on with it and make that decision, because आपका understanding card भी आया है। मतलब the cards are saying that जो भी आपको जिस चीज़ को लेके कंफ्यूजन है उसमें आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेके जाना है। यू हैव टू फ्लाई आउट, ओके, विद दैट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इसमें रिस्क है, बट आई सी द मेरिट इन दिस, मेरे पास वो स्किल्स हैं, मैं ऐसे कर लूँगा या कर लूँगी मैनेज, बट आई एम रेडी टू टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क। बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दैट, आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे वाइल योर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स आर enjoying and they are flying in the open free sky। You are sitting at the edge of this cage and the cage is broken, but still you're not going out। So वो जो confusion है उसको overthink मत करो, take a calculated risk and make that decision this week। एंड थर्ड आपका जो कार्ड आया है कि आपको अबंडेंस में चीज़ें होने वाली है इस वीक, कोई चीज़ें की कमी नहीं रहेगी। मून है, सन है, बुक है, मतलब विजडम भी रहेगा। ओवरऑल किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सब बैलेंस में रहेगा। तो ओवरऑल अच्छा वीक है, बस अपनी कंफ्यूजन को हटा दो और कैलकुलेटेड रिस्क लेके वो डिसीजन या वो अपॉर्चुनिटी को यूज करो। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय एक्वेरियस फ्रेंड्स फॉर द अपकमिंग वीक। ओके, लेट मी गिव इट अ गुड शफल एंड देन वी ऑफ वी गो। Okay, Aquarius, so the first card we've got for you is the politics card। मतलब you have to be very careful about certain people, either in your professional circle या in your personal circle। कुछ कोई तो है जो लग तो बहुत इनोसेंट और आपका फ्रेंड रहा है या फ्रेंड रही है, बट पीछे से दैट्स नॉट अ वेरी गुड पर्सन। तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लेके आपको बहुत ध्यान रखना है इस वीक। ठीक है, वो पॉलिटिक्स कर सकता है या कर सकती है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके कोलीग्स हो, चाहे ऑफिस में कोई हो आपके peers, but you have to be very careful। So थोड़ा watch the situation, don't trust anybody who appears to be too good to be true or too sweet to be true। ठीक है, सेकेंड कार्ड आपका आया है अलोननेस, मतलब कि देर आर मोमेंट्स इन दिस वीक जब आपको लगेगा कि मैं आई एम अलोन, ओके, आई हैव नोबडी टू बी विद मी और सपोर्ट मी और टेक केयर ऑफ मी। बट प्लीज रिमेंबर, ये जो अलोननेस है इसको हम इसको हम कहते हैं ना, कई लोग लोनलीनेस परसीव करते हैं, ये लोनलीनेस नहीं, ये अलोननेस है। मतलब यूज दिस अलोन टाइम टू क्लियर योर हेड, टू नो योर प्रायोरिटीज, टू नर्चर योर ओन थिंकिंग। तो वो जो आपको लोनली टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूज करो अपने आप को हील करने के लिए और थिंक स्ट्रेट करने के लिए कि आपको आगे क्या करना है। ओके, और ओवरऑल आपका साइलेंट वीक है, पीसफुल वीक है, कोई ऐसे डिस्ट्रप्टिंग न्यूज या इवेंट्स नहीं होने वाली, कामनेस है, मून है। जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ सम पीपल हु आर वेरी पोलिटिकल इन नेचर एंड हु कैन लेट यू डाउन। ओके, ऑलराइट, नाउ आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर Pisces and let's see कि Pisces के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑलराइट,
All right, Pisces. So the first card that has come for you is exhaustion. मतलब बहुत overwork हो रहे हो आप. You are not taking enough rest and you are not able to say no to things, जिसकी वजह से you are taking more than you can handle. And this can cause you fatigue, it can cause you medical problems, it can cause you emotional and physical problems. So be very careful that you have to stop and take a break right now. Okay. Second आपका कार्ड है क्रिएटिविटी का. तो मतलब कुछ हॉबी को लीजिए, कुछ क्रिएटिव अपनी साइड एक्सप्लोर कीजिए, उसके आपको पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी भी मिल सकती है. एंड ऑल्सो इन्वेस्ट योर सेल्फ इन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और अपनी जो भी पुरानी कोई जो आपकी लेजर एक्टिविटीज़ थी या क्रिएटिव साइड था जो आप भूल चुके हो उसके बारे में, उसको अपनी लाइफ में ब्रिंग बैक कीजिए. एंड थर्ड आपका बहुत पावरफुल कार्ड आया है ब्रेक थ्रू कार्ड. मतलब कुछ चीज़ें जो अटकी हुई थी और जहाँ पर आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था प्रोफेशनली या पर्सनली, वो ब्रेक थ्रू आने वाला है इस वीक. इट्स गोइंग टू शैटर. लाइक यहाँ पर ग्लासेस हैं वो शैटर हो रहे हैं, ग्लासेस के पीसेस. मतलब एक बहुत ब्रेक थ्रू गुड पॉजिटिव इवेंट आने वाला है एंड दैट यू नीड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट यू गोइंग टू गेट. सो वेरी प्रॉमिसिंग वीक फॉर यू. ऑल राइट, बाय, टेक केयर.